Hello students, today we are going to discuss class 12 chapter 6 application of derivative, a very important question number 26 from exercise 6.5 of NCERT. The question says, show that semi-vertical angle of a right circular cone of given surface area and maximum volume is sine inverse 1/3. Let us put this whole of the information on a diagram first and see what is required. Let me take this as my cone. Let us say alpha is the semi-vertical angle, h is the straight height, r is the radius, and L is the slant height of the cone. Now let's come back to the question. What it says, क्या बताना है मुझे? Semi vertical angle of the right circular cone means I'm talking about this alpha. This is sine inverse 1/3. When is it sine inverse 1/3? When cone is of given surface area, means surface area is constant. That is given to me, and what is to be maximized? Volume is to be maximized. So first of all, I have to write two things: what is given to me, what is fixed, and what is to be maximized. Surface area is given. Let us denote surface area with S. I know the surface area of a cone is pi r square plus pi r L. As nothing is mentioned, it is curved surface area or total. I am going to consider the total surface area, which is pi r square plus pi r L. This is given to me. This is constant. What is to be maximized? Volume. What is volume of a cone? Volume is 1/3 pi r square h, which needs to be maximized. Now we know जिस भी वेरिएबल को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट किया जाता है. Here I have got two variables r and h, so I have to convert it into the single variable. But another problem in this particular question is, whatever is given to me, from there I cannot take out value of r, which is here. I can put value of r in terms of s, then I will have only one variable h because s will become constant. But in this question, problem क्या है, मैं इस equation में से r की value नहीं निकाल सकती. इस equation में से जो value मैं निकाल पा रही हूँ, that is only L. So let us see, s minus pi r square upon pi r. This is the value of L. मुझे R भी नहीं मिला in terms of S, H भी नहीं मिला in terms of S. मुझे क्या मिला? मुझे सिर्फ L मिला. तो अब मुझे L, R और H के रिलेशंस पर जाना पड़ेगा ताकि उन्हें यूज करके मैं इसे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करूं, तभी डिफरेंशिएट कर पाऊंगी और तभी आगे प्रोसीड कर पाऊंगी. सो वी नो वन रिलेशन. व्हाट इज दैट? L square is equal to R square plus H square. This is one relation that is known to me. Now L की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये दो चीजें भी मेरे पास यहाँ पर आ गई. यहां से हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर करते हैं. V स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर R4 H स्क्वायर. अब क्या करो, इस इक्वेशन में से H स्क्वायर की वैल्यू उठाओ, यहां पर डाल लो. क्या हो जाएगी यहां से H स्क्वायर की वैल्यू? L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर. सो V स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर R4 L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर. और अब क्या करें, अब अभी भी यहां पर दो वेरिएबल्स, दो अननोन्स, एक R और एक L, लेकिन अब L मेरे पास इन टर्म्स ऑफ R एंड S पड़ा है. S कांस्टेंट है, R वेरिएबल. तो यहां से L की वैल्यू उठा करके हम यहां पर डाल दे रहे हैं. आपकी कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा यहाँ पर टेडियस है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे तो दिक्कत नहीं आएगी. क्या किया मैंने, अब यहां से L की वैल्यू उठा करके यहां पर डाल दी. लेट अस सी क्या मिलने वाला है मुझे. मेरे पास आ जाएगा V स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर R पावर 4 L का स्क्वायर, दैट इज S माइनस पाई R स्क्वायर अपॉन पाई R होल स्क्वायर माइनस R स्क्वायर. ठीक है जी. अब मेरे इसका काम और इसका काम फॉर द टाइम बीइंग हो गया. इसे अभी हम
इरेज कर दे रहे हैं। मेरे पास जो इक्वेशन बन करके आई है दैट इज पाई स्क्वायर बाय 9 R4, इस टर्म का स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। पहले इस टर्म को एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हम डिफरेंशिएशन वाला पार्ट करेंगे। पाई स्क्वायर बाय 9 R पावर 4 a माइनस बी होल स्क्वायर न्यूमरेटर में जाएगा, s स्क्वायर पाई स्क्वायर R4 माइनस 2s पाई R स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। सो v स्क्वायर इज पाई स्क्वायर बाय 9 R पावर 4 s स्क्वायर पाई स्क्वायर R4 माइनस 2s पाई R स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर R पावर 4 डिवाइड बाय पाई स्क्वायर R स्क्वायर। अब देखते हैं ये टर्म मेरी कैंसिल हो गई। जब ये टर्म्स मैंने कैंसिल करी तो मेरे पास बाहर जो टर्म्स पड़ी हैं, एक ये पाई स्क्वायर इस पाई स्क्वायर से चला जाएगा, ये R स्क्वायर R4 कैंसिल होके R स्क्वायर दे देंगे। सो v स्क्वायर इज R स्क्वायर बाय 9 विद इन ब्रैकेट s स्क्वायर माइनस 2s पाई R स्क्वायर। अब हमें मालूम है जो s है वो मेरा कांस्टेंट है, तो मैं क्या करती हूं, मैं इसमें से s को बाहर निकाल देती हूँ और ये R स्क्वायर को अंदर ले जाती हूँ। सो आई हैव v स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 9 और आई से s बाहर निकाला तो s बाय 9, ये R स्क्वायर अंदर ले जा रहे हैं s R स्क्वायर, s बाहर आ गया, R स्क्वायर अंदर गया तो 2 पाई R पावर 4। सो अल्टीमेटली मेरा जो एक्सप्रेशन है दैट इज s बाय 9 विद इन ब्रैकेट एस आर स्क्वायर माइनस 2 पाई R पावर 4। तो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी टिडियस, लेकिन एक एक स्टेप से करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे वॉल्यूम को करना है मैक्सिमाइज। हाई लो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए मुझे क्या करना रहता है, इसका डिफरेंशिएट, और यहाँ पर वेरिएबल है सिर्फ r, सो आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू r. Before that, let me take this v square as some another variable z. So if I maximize v square or I maximize z, it becomes one and the same thing. So what I am going to do, I will find out dz by dr. Let us see what it gives me. S is a constant. S by 9 आपका बाहर पड़ा रहेगा, constant है. R variable differentiate करें with respect to r ही कर रहे हैं, तो 2rs. This will become 8 pi r square. So s by 9 2rs minus 8 pi r square. Now I know कोई भी वेरिएबल अगर किसी पॉइंट पर मैक्सिमम या मिनिमम है तो वहां पर उसका डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। So what I need to do, I need to put dz by dr equal to 0, which gives me s by 9 2rs minus 8 pi r square is equal to 0. 2rs as 8 pi r square, s will become 2 से ये 4 cancel, so I have s as 4 pi r square. By taking dz by dr as 0, I am getting value of s as 4 pi r square. Now next step is I have to see कि इस s की वैल्यू पर d2z by dr square क्या होना चाहिए, दैट शुड बी नेगेटिव, क्योंकि मुझे z को करना था मैक्सिमाइज. सो फॉर दैट स्टेप आई नीड टू डिफरेंशिएट इट वंस अगेन. सो लेट अस सी d2z by dr square, s by 9 again constant, r is the variable, so this becomes 2s and that becomes 16. This is 2 pi r cube, 8 pi r cube. So this becomes 24 pi r square. Now I have to check when s is 4 pi r square. This is 24 pi r square. So when s is 4 pi r square, whether this quantity is positive or negative, this is what I want to check. See, s को जब हम 4 pi r square डालेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, बाहर s है दैट इज 4 पाई r स्क्वायर बाय 9, 2s दैट इज 8 पाई r स्क्वायर माइनस 24 पाई r स्क्वायर.
This becomes 16 pi r square with negative sign upon 9 into 4 pi r square. Rest everything is positive, r square is positive, negative sign is there. So this tells me that d2z by dr square is negative when s is 4 pi r square. And when second derivative of a variable is negative, it tells me that my variable is going to take maximum value at this particular point. लेकिन मुझे प्रूफ क्या करना था? मुझे प्रूफ करना था वर्टिकल एंगल साइन सेमी वर्टिकल एंगल एज साइन इनवर्स 1/3. तो अब हम एक काम करते हैं, वापस से जरा डायग्राम पर चलते हैं. डायग्राम वाज समथिंग लाइक दिस. ये आपका R है, ये H है, ये L है और ये है मेरा सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा. अब यहां मेरे पास आया S एज 4 पाई आर स्क्वायर और S क्या था? S था पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल. डाल देते हैं यहां पर, क्या आ जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल. 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर एल. पाई कैंसल, एक आर भी कैंसल. आर बाय एल is becoming 1/3. Now look at this diagram. What is R by L? For alpha angle, R is perpendicular and L is the hypotenuse. So from here, what I take? From here I have sine alpha R by L. Let us say इसको हम नेमिंग कर देते हैं ABC. In triangle ABC, sine alpha is R by L, and from this I can say sine alpha is 1/3 or alpha is sine inverse 1/3, and this is something that I need to prove. Thank you.